अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, डिफाइन मैट्रिक्स। डिफाइन मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरे or a formation of a collection of real numbers say 0 1 2 3 4 7 such as 0 1 2 3 4 7 and then enclosed by brackets is said to form a matrix. This is the definition of a matrix. For example, suppose we have a matrix A. A rectangular array. Array mean arrange करना, तरतीब देना, और a formation बनाना same of a collection of a real numbers. Student real numbers तो infinite है. इन्फिनिट रियल नंबर्स में से कुछ नंबर की कलेक्शन लाइक दिस वी सिलेक्टेड सम रियल नंबर्स 0 1 2 3 4 7 सच एज। फिर इन नंबर्स को अरेंज करना, अरे तरतीब देना, अरेंज करना लाइक दिस, एक रेक्टेंगल की शेप में तरतीब देने के बाद एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। फिर इन नंबर्स को इस तरह के ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देना is said to form a matrix. मैट्रिक्स का बनना कहलाता है लाइक दिस। मैंने इन नंबर्स को यानी इन्हीं नंबर्स को 0 1 2 3 4 7 इन्हीं नंबर्स को मैंने इस ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया, सो दिस इज द मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल, सपोज वी हैव रियल नंबर्स 1 2 3 4 और इन नंबर्स को हमने एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, सो दिस इज द मैट्रिक्स B. अनदर एग्जांपल, सपोज वी हैव नंबर्स 1 2 3 देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट एक सिंपल डेफिनेशन है मैट्रिक्स, डिफाइन मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स? Next short question is, what is rows of a matrix? मैट्रिक्स की रोज क्या होती हैं? What is the rows of a matrix? मैट्रिक्स की रोज क्या होती हैं? इसका आंसर है the entries in a matrix the entries presented in horizontal way
are called rows of a matrix. For example, suppose we have a matrix A whose entries are 1 2 3 4 5 6. The entries in a matrix, किसी matrix में, in any matrix, the entries presented in horizontal way are called rows of a matrix. So student, this one is the first row R1. Student, ये entries horizontal way में आ रही हैं, so this is called first row, and this one is the second row R2. So there are two rows in a matrix A. The entries presented in horizontal way are called rows of a matrix. Now the next question is, what is the columns of a matrix? What is columns of a matrix? Matrix के columns किन्हें कहते हैं? तो similarly, in a matrix, the entries presented in vertical way, just change one word. The entries in a matrix, the entries presented in vertical way are called columns of a matrix. So in matrix A, these entries are presented in vertical way, so this is called C1, column 1. Another one is C2, column 2, and the last one is C3, column 3. So in a matrix A, we say there are 2 rows and 3 columns. Now come to the next short question, order of a matrix. What is the order of a matrix? तो स्टूडेंट आंसर में, the number of rows, the number of rows and column in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, if a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n. Ji student, what is the order of a matrix? The number of rows and column in a matrix specifies its order. Mean कि किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम की तादाद उसके ऑर्डर को जाहिर करती है. If a matrix M has m rows, सपोज कि एक मैट्रिक्स M है और उसमें जो रोज की तादाद है वो m है और उसके कॉलम्स की तादाद n है, then M is said to be of order m by n. For example, we have a matrix A whose entries are 1 2 3 4 5 and 6. We have studied the entries in horizontal way are called rows. So there are 2 rows in a matrix A and there are 3 columns. The entries presented in vertical way are called columns. So there are 3 columns in a matrix A. And what about the order of matrix A? As we have studied, the rows and columns represent the order of a matrix. So we say the order
order of A is 2 by 3. The order of A is 2 by 3 because there are 2 rows and there are 3 columns. So we say the order of A is 2 by 3. Now the next definition is equal matrices. Define equal matrices. Equal matrices. Let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B if number 1, order of A is equal to the order of B, and second one is their corresponding entries are same or equal. सेम और इक्वल। जी स्टूडेंट, आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए whose entries are 1 2 3 4, another matrix is B whose entries are 1 2 3 1 3 4 and 5। ना स्टूडेंट हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ए बी के इक्वल है, तो आपको ये दो कंडीशंस इसमें चेक करनी। फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। स्टूडेंट तो ए का ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसमें दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, सो इट्स ऑर्डर इज 2 by 2। एंड व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ बी, इट्स आल्सो इज ऑर्डर इज 2 by 2। सो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, their corresponding entries are same। तो स्टूडेंट ये जो एंट्री है इसकी प्लेस है, इसको आप बोलते हैं A11। A11 मीन दिस एंट्री इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस एंट्री इसकी जो प्लेस है वो है A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इस एंट्री की जो प्लेस है वो है A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और इस एंट्री की जो प्लेस है वो है A22 यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो स्टूडेंट ये A11 जो एंट्री जहां पे 1 लिखा है, तो A11 में यहां भी 1 है, तो फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। नाउ कम टू द सेकंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्री। तो स्टूडेंट यहां A12 की एंट्री 2 है और यहां A12 की एंट्री 3 है। तो क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, सो वी से A नॉट इक्वल टू B। और अगर आप इसको सेम करना चाहते हैं तो स्टूडेंट यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 की बजाय यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ताकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ये भी इसके सेम हो जाए। और स्टूडेंट A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसमें 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ A22 में 5 आ रहा है, सो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। ओके स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चंस इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।